Assalamu alaikum. In this video, we are going to discuss a topic which is very important for Pakistan affairs and current affairs as well, which is the agriculture in Pakistan. Pakistan is basically an agro economy where agriculture holds great importance for it in terms of economic growth, food security, employment generation, and poverty alleviation. Economic growth of any country is directly proportional to the number of exports it has in the international market. Cotton being our major export crop related to the agriculture sector, it boosts our economy internationally and locally as well. Food security is related to the growth of wheat, rice, maize, which are the staple products of Pakistan. And if we want to be a food secure country, we need to be self-sufficient in the growth of these crops. Approximately 37% of our labor force is employed in the agriculture sector, and this is how it alleviates poverty from the country, as the major chunk of the people who are employed in the agriculture sector, they belong to the rural areas. Following are some of the facts which are related to the agriculture sector. It contributes approximately 23% to our GDP, and it employs 37% of the labor force, and 65 to 70% approximately population. It depends upon agriculture sector for livelihood, and Pakistan is the fifth major contributor of a cotton producer in the world, according to the International Cotton Advisory Committee. Our goal in terms of our agriculture sector is to ensure uninterrupted supply of basic food items at affordable prices to the common man, and then boost productivity and exports to enhance our economy, and then rural development driven economic growth, as a major chunk of people who are employed in the labor force, they belong to the rural areas. Okay, so what are the causes of constrained agriculture growth? In Pakistan, the number one major cause of constrained agriculture growth is a shrinking arable land, which means कि जिस ज़मीन पे हमने काश्तकारी करनी है वो बहुत कम होती जा रही है. Why? Because of the climate change, because of water shortage, because of large scale population. वाटर शॉर्टेज की वजह से जो अंडरग्राउंड वाटर टेबल हैं वो डिप्लीट होते जा रहे हैं. क्लाइमेट चेंज की वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रही है, डिजर्टिफिकेशन हो रही है. जो ज़मीन वैसे एरेबल थी पहले कुछ सालों पहले, वो अब बिल्कुल बंजर होती जा रही है. लार्ज स्केल पॉपुलेशन की वजह से जहाँ पे लोग पहले जहाँ पे खेती बाड़ी होती थी, अब वहाँ पे लोगों ने घर बनाना शुरू कर दिए हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारी जो एग्रीकल्चर ग्रोथ है वो कम होती जा रही है. लेबर शिफ्ट फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज़, यानी जो लोग पहले गांव देहात में रहते थे वो लोग अब शहरों की तरफ आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो लोग जो एक्सपर्टीज़ रखते थे उन कामों में, एग्रीकल्चर रिलेटेड कामों में, अब वो लोग शिफ्ट हो रहे हैं अर्बन एरियाज़ में, जिसकी वजह से उस तरह से एक्सपर्टीज़ वहाँ पे नहीं. नेक्स्ट इज़ द इंक्रीज़ इन इनपुट प्राइसेस. इनपुट फार्म्स इनपुट्स जो होती हैं वो बेसिकली होती हैं फर्टिलाइज़र्स, सीड्स, फार्म मैकेनाइजेशन या फिर इरिगेशन. अब फर्टिलाइज़र्स बहुत महंगे हैं, सीड्स बहुत महंगे हैं, फार्म मैकेनाइजेशन यानी कि ट्रैक्टर्स वगैरह बहुत मुश्किल से बहुत महंगे महंगे मिलते हैं, जिसकी वजह से ये प्राइसेस बहुत बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से लोग एफिशिएंट चीज़ें जो हैं वो नहीं ख़रीद सकते, और ओवरऑल अगर देखें तो उसकी वजह से भी एग्रीकल्चर ग्रोथ सफ़र कर. नेक्स्ट इज़ चेंजेस इन पैटर्न ऑफ प्रेसिपिटेशन, विच मीन्स हैवी मानसून रेन्स और ड्रॉट. कभी कभी बहुत ज़्यादा बारिशें होने लग जाती हैं और कभी कभी कुछ इलाकों में बिल्कुल बारिशें नहीं होती हैं, जिसकी वजह से एक अनप्रिडिक्टेबल पैटर्न है प्रेसिपिटेशन का, बारिशों का, जिसकी वजह से क्रॉप्स जो हैं वो प्रॉपरली ग्रो नहीं करती. नेक्स्ट रीज़न इज़ पेस्ट अटैक्स, जैसे कि लोकस्ट अटैक होता है, ये इस तरह से करके कोई भी चीज़ आके अटैक कर जाती है जैसे फसलों पे, तो उसकी वजह से सारी की सारी फसलें तबाह बर्बाद हो जाती हैं. Another major reason for the lack of agriculture growth is the lack of research and development. हमारी वही पुरानी जो प्रैक्टिसेस चलती आ रही हैं, हम वही अभी भी कायम रखे हुए हैं. Our farmers are unaware about the new technology that is prevalent in the West, and they are adamant to continue practicing their old traditions, and which are costly in terms of time and money as well. Next are our key crops, which are basically the Rabi and Kharif crops. Kharif crops, they are sown in the season of April to June, and they are harvested from October to December. Rabi crops are sown in October to December, and they are harvested in April and May. खरीफ क्रॉप्स में चावल, गन्ना, कपास, मकई, मूंग की दाल, माश की दाल, बाजरा एंड जवार, ये सब चीज़ें खरीफ क्रॉप्स में आती हैं. रबी क्रॉप्स में गंदम, चना, मसूर की दाल, तंबाकू, तोरिया या तिल्ली, जौ और सरसों शामिल हैं.
कॉटन के बारे में जैसे हमने पहले पढ़ा है कि इट इज़ अवर मेजर एक्सपोर्ट क्रॉप और ये इकोनॉमी में हमारी बहुत हेल्प करती है, लेकिन इसका नुकसान ये हो रहा है फ़िलहाल कि इसकी जो एकरेज है, यानी कि जो ज़मीन पे इसको ग्रो किया जाता है, वो श्रिंक होती जा रही है। एकरेज ऑफ क्रॉप इज श्रिंकिंग ड्यू टू नॉन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ क्रॉप। जिसके मुकाबले में मेज़, पैडी या शुगर केन जो है वो हमें ज़्यादा फ़ायदा दे रही हैं, और कॉटन के इतना फ़वाइद नहीं है, जिसकी वजह से इसको इतना ज़्यादा ग्रो नहीं किया जा रहा। नेक्स्ट इज़ द बायोटिक स्ट्रेसेस, यानी कि पेस्ट अटैक बहुत ज़्यादा होता है कॉटन पे, जिसकी वजह से इसको ज़्यादा ग्रो नहीं किया जा रहा। एंड देन आर द एबायोटिक स्ट्रेसेस विच आर द क्लाइमेट चेंज, द हीट स्ट्रेस एंड द रेनफॉल एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, एंड द हाई इनपुट कॉस्ट, यानी कि इन सब चीज़ों में जो इनपुट लगती है, यानी कि फर्टिलाइज़र, सीड्स, वो बहुत महंगे हैं, जिसकी वजह से इनको इतना ईजिली ग्रो नहीं किया जाता। So what are the solution of this cotton challenge? The solutions are the cotton zoning, के एक एरिया आप मुख्तस कर दें, मतलब उसको स्पेसिफाई कर दें कि यहाँ पे कॉटन लाजमी ग्रो की जाएगी, एक जोन बना दें कॉटन का। नेक्स्ट इज़ अ फिक्स्ड मिनिमम प्राइस। मिनिमम प्राइस क्या होती है कि किसी भी चीज़ की, किसी भी कमोडिटी की एक मिनिमम प्राइस सेट कर ली जाती है कि कभी भी इससे कम पे वो चीज़ नहीं बिकेगी। तो जैसे फार्मर्स हैं, इफ़ दे हैव टू सेल समथिंग, तो देयर शुड बी अ फिक्स्ड मिनिमम प्राइस कि वो एटलीस्ट इतना तो वो बेचेंगे ही बेचेंगे। नेक्स्ट इज़ टाइमली सब्सिडीज़। सब्सिडीज़ होती हैं, गवर्नमेंट किसी भी चीज़ पे जो रियायत देती है फार्मर्स वगैरह को रिगार्डिंग द प्राइसेस ऑफ सीड्स और एनीथिंग रिलेटेड टू दैट, तो उसको सब्सिडी कहते हैं। तो टाइमली सब्सिडीज़ इन द टर्म्स ऑफ कॉटन, जैसे कि अभी हमने ऊपर बात की है कि एकरेज ऑफ क्रॉप श्रिंकिंग जो है वो हो रहा है क्योंकि नॉन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ क्रॉप है, कि इस चीज़ में फार्मर्स को इतना फ़ायदा नहीं है, इस वजह से वो कॉटन को ग्रो नहीं करते। इंस्टेड ऑफ मेज़, पैडी एंड शुगर केन, उन चीज़ों में फार्मर्स को फ़ायदा है। तो इस वजह से अगर हमने कॉटन ग्रो करवानी है, बिकॉज इट इज़ अ ग्रेट एक्सपोर्ट कमोडिटी, तो उस वजह से हमें चाहिए, इसलिए वी नीड टू प्रोवाइड सब्सिडीज़ ऑन द कॉटन। एंड देन फार्मर्स अवेयरनेस एज यूजुअल के फार्मर्स को, बिकॉज दे आर द मेन पीपल हु आर ऑन द फील्ड, वो एक्चुअली काम कर रहे हैं, उनको पता है कि ज़मीन किस तरह की है और उस पर क्या चीज़ जो है फ़ायदेमंद होती है, तो एक्चुअली उनको अवेयर किया जाए और उनकी इनपुट भी ली जाए। In KPK and Balochistan, as there are vast areas of land available, so cotton needs to be grown in those areas. Then sugar cane is a high value cash crop, and ये एग्रो इंडस्ट्री सेक्टर में यूज़फुल होती है, बिकॉज नंबर फर्स्ट जो एग्रो इंडस्ट्री सेक्टर है डैट इज़ टेक्सटाइल, एंड नंबर सेकंड इज़ शुगर। राइस इज़ अ फूड क्रॉप प्लस कैश क्रॉप, उसको स्टेपल फूड के तौर पे भी यूज़ किया जा रहा होता है और कैश क्रॉप के तौर पे भी, बिकॉज उसको एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। इट इज़ द सेकंड मेन स्टेबल फूड क्रॉप ऑफ पाकिस्तान, फर्स्ट बीइंग द वीट, सेकंड मेजर एक्सपोर्टेबल कमोडिटी, फर्स्ट इज़ कॉटन ऑब्वियसली, एंड राइस की बहुत ज़्यादा डिमांड है इन द इंटरनेशनल मार्केट। Wheat is the main staple crop of Pakistan. It is essential for food security, and our goal is to be self-sufficient in wheat. Maize यानी कि मकई, it is the third important cereal crop of Pakistan. नंबर 1 पे as we have discussed earlier wheat है, सेकंड पे राइस है, एंड मेज़ यानी कि मकई जो है, it is a multi-purpose crop जिसको फूड, फीड और फॉडर के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। नाउ कम्स अ क्वेश्चन, हाउ टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। इसके लिए हमें न्यू अप्रोचेज मेनली यूज़ करनी पड़ेंगी। वी हैव टू लीव द एज ओल्ड ट्रेडिशंस, और रादर वी हैव टू मॉडिफाई दैम एंड इनकॉर्पोरेट दैम अलॉन्ग विद दीज न्यू अप्रोचेज। इसमें सबसे पहले क्या करना है आपने कि लिंक इट विद सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स। सेकेंडरी सेक्टर, सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर वो होता है जो कि प्रोड्यूसर्स होते हैं। सेकेंडरी में होता है कि जिसमें वही प्रोडक्शन जो होती है आपकी, उसको आप यूज़ करते हैं, एंड देन सर्विसेज में आप उसी चीज़ को बेचते हैं। सो वी हैव टू इनकॉर्पोरेट दीज 3 सेक्टर्स टुगेदर। इस सब से ये होगा कि इकनॉमिक ग्रोथ आपकी बेहतर होगी। एंड देन वही बात है कि जो पहले हमने प्रॉब्लम्स पढ़ी हैं, अब हमने उन्हीं चीज़ों के सॉल्यूशंस देने हैं। सो एज़ यूजुअल हमने सब्सिडीज़ देनी है उन सब चीज़ों पे जो कि इनपुट प्राइसेस जो कि ज़्यादा थी, अब हमने उन्हीं चीज़ों को कम करने के लिए उन्हीं पे सब्सिडीज़ दे दें, जैसे कि फर्टिलाइजर्स, फंजीसाइड्स एंड वीडीसाइड्स। नेक्स्ट इज़ इंक्रीज़ इन द मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ क्रॉप्स, वही हमने जो पहले बात की मिनिमम प्राइस की। एंड देन इज सफिशिएंट अवेलेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चरल इनपुट्स, जो चीज़ें इनपुट्स में यूज़ होती हैं जैसे कि वाटर, फर्टिलाइजर्स, सीड्स, पेस्टिसाइड्स एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट, वी विल डिस्कस इट लेटर। तो इन चीज़ों की सफिशिएंट अवेलेबिलिटी हो, इन चीज़ों में कमी एटलीस्ट ना हो। इन सब के लिए जो अभी तक एफर्ट्स की गई हैं टू मेक द एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो प्रॉपर्ली इज़, नंबर 1 इज़ द एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, एंड सेकंड इज़ नेशनल ऑयल सीड एनहांसमेंट प्रोग्राम, जिसमें सब्सिडीज़ दी गई हैं फॉर सीड्स इनपुट्स फॉर द कैनोला, सनफ्लावर एंड सेसमी ऑयल्स। एंड देन सब्सिडीज़ दी गई हैं ऑन द परचेज ऑफ ऑयल सीड मशीनरीज फॉर ऑयल सीड ग्रोअर्स, कि जो लोग ग्रो करना चाह रहे हैं ऑयल सीड्स, उनको मशीनरी जो है परचेज़ करने के लिए उनको उन चीज़ों पर सब्सिडीज़ दी गई। दिस इज़ द एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, जिसमें एक वाइड रेंज ऑफ रिफॉर्म्स जो है वो किए गए हैं, जिसमें सीड सेक्टर रिफॉर्म्स आ जाते हैं, मैकेनाइजेशन है, वाटर एफिशिएंसी है, एक्सेस टू क्रेडिट है, पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज, रीस्ट्रक्चरिंग द रिसर्च इंस्टीट्यूट्स जिसकी बहुत ज़्यादा कमी है, और इसके अलावा ग्रोथ ऑफ द प्रॉफिटेबल क्रॉप्स।
अभी तक हम फार्म इनपुट्स की जो बार बार बात कर रहे हैं वो एक्चुअली क्या होते हैं, उनमें सबसे पहले आता है फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो 84% फर्टिलाइज़र्स पाकिस्तान में जो है वो लोकल प्रोड्यूस हो रहे हैं। हमारी अपनी फर्टिलाइज़र की फैक्ट्रीज हैं, जिसमें एक जो है वो पाकिस्तान फर्टिलाइज़र है विच इज़ डिपेंडेंट अपॉन गैस। तो अगर गैस की प्राइसेस ज़्यादा हो रही हैं तो इनके आपके फर्टिलाइज़र्स की प्राइसेस भी ज़्यादा होंगी। एंड देन 16% फर्टिलाइज़र जो है वो हम इम्पोर्ट करते हैं। सेकेंड फार्म इनपुट इज़ द सीड्स। सीड्स को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, उसके लिए हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिवाइटलाइजेशन करनी होगी। बिकॉज सीड्स के लिए कि नए से बेहतर तरीके से कौन से सीड्स हम बेहतर लगा सकते हैं जिनकी वजह से हमें ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, उसके लिए हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस करना है। नेक्स्ट इज़ द सीड सेक्टर रिफॉर्म्स एंड नेक्स्ट इज़ फार्म मैकेनाइजेशन, कि आप अपने सारा का सारा फार्म जो है उसको मैकेनाइज कर दें, बजाय इसके कि आप हाथ से जो है अभी इस ज़माने में भी हाथ से मेहनत कर रहे हैं। आप अपनी मशीनरी इस तरह की लें जो कि ऑटोमेटिक हो, जिसकी वजह से आपको ईजीली फ़ायदा हो, जिसमें ट्रैक्टर्स वगैरह और इस तरह से लेटेस्ट इक्विपमेंट शामिल है। अनदर फार्म इनपुट इज़ द इरीगेशन। इरीगेशन में सबसे पहले ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान इज़ अ वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री। हमारे पास पानी बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, तो जो थोड़ा बहुत है वी हैव टू मेक यूज़ ऑफ इट ओनली। देन इसमें ये बात है कि इसके लिए हमें बेहतर हम इसको कैसे कर सकते हैं, इसमें हमें इंक्लूसिव एंड कॉम्प्रहेंसिव प्लानिंग चाहिए होगी। उसके लिए हमारी जो नेशनल वाटर पॉलिसी है 2018 की, उसका मेन गोल जो है वो ये है कि उसमें हमें वाटर स्टोरेज कैपेसिटी अपनी बढ़ानी है बाय 10 मिलियन एकड़ फीट। उसमें सबसे पहले हमने 2 मेजर डैम्स दायमर भाषा एंड मोहम्मद डैम जो है वो हमने बनाने हैं। एंड देन उसके बाद 518 मीडियम एंड स्मॉल डैम्स बनाने हैं, जिनकी टोटल कैपेसिटी 8.33 मिलियन एकड़ फीट होगी। और करंट वाटर स्टोरेज कैपेसिटी पाकिस्तान की जो है वो 13.68 मिलियन एकड़ फीट है फॉर 30 डेज़। और ये जो हम डैम्स वगैरह बनाएंगे उसकी वजह से हमारी ऑलमोस्ट 10 मिलियन एकड़ फीट हो जाएगी। पाकिस्तान के जो वाटर सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है टू इन्हांस द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, उसमें सबसे पहले हमारे ये 4-5 पॉइंट्स हैं, जिनमें सबसे पहले ये है कि वाटर कंजर्वेशन। जो आपके पास पानी है थोड़ा बहुत, आप बिकॉज वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री है तो उस वाटर को आपने यूज़ करना है प्रॉपरली। एंड देन इज़ अ वाटर ऑगमेंटेशन, उसी चीज़ को आपने ज़्यादा से ज़्यादा उससे फ़ायदा उठाना है। एंड देन इज़ ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट, बिकॉज ग्राउंड वाटर टेबल्स जो हैं वो डिप्लीट हो रहे हैं, तो उसको आपने एक तो ये कि पहले मेनटेन रखना है, देन उसको बढ़ाना है। एंड देन अदर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, अपने इंस्टीट्यूशंस को सबको बेहतर करें। एंड देन प्रोटेक्शन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम फ्लड्स एंड वाटर लॉगिंग, यानी कि जब भी फ्लड्स वगैरह या कोई भी इस तरह से करके नेचुरल हैज़र्ड होता है तो उसमें आपने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना है, ताकि आपको बिल्डिंग्स वगैरह को या इस तरह से करके एरियाज़ को नुकसान ना पहुँचे। सो फॉलोइंग आर द सम ऑफ द वेज टू कंजर्व वाटर। इसमें सबसे पहले ये है कि ब्रिंग एरिया इन बलोचिस्तान अंडर कल्टीवेशन, बिकॉज बलोचिस्तान का एरिया जो है वो वाइडली बैरन है और उसको आप यूज़ कर सकते हैं फॉर कल्टीवेशन। देन इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड फ्रॉम वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी इन सेंध, बिकॉज सेंध में बहुत ज़्यादा वाटर लॉगिंग और सैलाइन सारी सॉइल है, तो उसको मज़ीद आपने नुकसान से प्रोटेक्ट करना है। देन इज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग थ्रू कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मॉल डैम्स फॉर इरीगेशन, फ्लड प्रोटेक्शन, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाईज फ्रॉम बलोचिस्तान। एंड देन इज़ द रिचार्जिंग ट्यूबवेल्स, अपने ट्यूबवेल्स को रिचार्ज करें। देन सेफ डिस्पोजल ऑफ ड्रेनेज इफ्लुएंट इनटू द सी, ताकि आपके जो साफ़ पानी है उसको वो गदला ना करे। देन इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू कैनाल्स। देन कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस, के उनके फार्मर्स एज वी डिस्कस्ड के वो मेन प्लेयर्स होते हैं इन एग्रीकल्चर, तो उसमें सबसे पहले ये कि उनकी कैपेसिटी बढ़ाएं, उनको एजुकेट करें, उनको अवेयर करें। देन मिनिमाइज कन्वेंस एंड फील्ड एप्लीकेशन लॉसेस, के मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक जब हम पानी को शिफ्ट कर रहे होते हैं किसी भी तरीके से, तो वहाँ पर जो वो लॉसेस होते हैं हमने उनको प्रिवेंट करना है ताकि पानी कंजर्व हो। देन इक्विटेबल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, कि हर जगह पे इक्वली वाटर डिस्ट्रीब्यूट हो। रिडक्शन इन वाटर डिस्प्यूट्स, थेफ्ट्स एंड लिटिगेशन, सेफ रन ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन, कि जो पानी बह रहा है उसको भी यूज़ करें। एंड देन इंक्रीज सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फार्मर्स, ताकि वो एडिकेटली वो अपने फील्ड्स में काम करें। ग्रोथ इन एग्रीकल्चरल क्रेडिट डिस्बर्समेंट और एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग, कि एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग जो कि बैंक्स वगैरह से या किसी भी तरीके से लोग जो होते हैं वो फाइनेंस कर रहे होते हैं एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूशंस को, तो उसमें भी उसको बढ़ाया जाए। फॉरेस्ट्री सेक्टर जो है उसका भी एग्रीकल्चर में बहुत रोल है, बट हमारा डिलेमा ये है कि हमारे मुल्क में फॉरेस्ट इतने ज़्यादा नहीं पाए जाते। वी आर अ फॉरेस्ट डेफिशिएंट कंट्री ड्यू टू द क्लाइमेट। हमारे यहाँ पे जो पाकिस्तान में क्लाइमेट है डैट इज़ एरिड और सेमी एरिड, तो इस वजह से ज़्यादा फॉरेस्ट ग्रोथ नहीं होती यहाँ पे। हमारा 5% एरिया जो है वो सिर्फ अंडर फॉरेस्ट कवर है, उसमें से भी 2.5% शेयर हमारा जो फॉरेस्ट कवर है उसका एग्रीकल्चर में है। नेक्स्ट, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है कि इट इज़ अ फाउंडेशन ऑफ लाइफ। इसकी वजह से क्लाइमेट और वाटर रिसोर्सेज मैनेज रहते हैं एंड इट सर्व्स एज अ हैबिटेट फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स।
डिस्पाइट एवरीथिंग हमारा फॉरेस्ट कवर जो है डैट इज़ ऑल्सो अंडर थ्रेट। उसको थ्रेट्स क्या क्या हैं? हमारे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, कि किसी भी एरिया में जब पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है तो पीपल हैव टू बिल्ड देयर न्यू होम्स, और उसकी वजह से वो सबसे पहले क्या करते हैं कि फॉरेस्ट जो होते हैं उनको कट करते हैं। इसके अलावा इसमें यह है कि लैक ऑफ अवेयरनेस है, इलीगल या अनसस्टेनेबल लॉगिंग होती है, ओवर हार्वेस्टिंग ऑफ वुड होती है फॉर फ्यूल्स, फॉरेस्ट फायर्स लगा देते हैं लोग, नेचुरल हैज़र्ड्स होते हैं या पेस्ट डिजीज़ होती हैं। सो ऑल ऑफ दिस एक्चुअली culminates into the decrease in the forest cover of Pakistan. Okay, so these are some of the points regarding the agriculture sector of Pakistan. If you have any more query, you can drop down in the comments below, and we will discuss the next topic in the next video.